Good morning, dear students. We were discussing the concept climate of India, in which we have already discussed about the different terms like climate, weather, monsoon, elements of climate, and climatic controls of any place. Today, we are going to discuss about the factor affecting Indian climate. What are the different factors that affect the climate of India? In previous lecture, we discussed about the climatic controls of any place or factor affecting the climate of any place in the world. But today, particularly, we are going to discuss about the factor affecting the Indian climate. Actually, there are two factors that affect the climate of India. These are our very first related to location and relief of India, and second is related to air pressure and the wind system. So these two factors affect the climate of India. In the location and relief, we further bifurcate the different factors that affect the climate of India. These are our latitude, altitude, relief, distance from sea, Himalayan mountain, distribution of land and water. Have a look once again. Latitude, altitude, relief, distance from sea, the Himalayan mountain, distribution of land and water. And second is related to air pressure and the wind system. There are three factors that affect the climate of India. These are our surface pressure and the wind system, upper air circulation, also known as jet stream, and western cyclone, also known as western cyclone disturbances. So these are the factors that affect the climate of India. Have a look here. The very first is the latitude. How the latitude affect the climate of India. Have a look on the diagram of the earth. Here you will find the different latitude like 0 degree equator, 23 and a half degree north tropic of Cancer, 66 and a half degree north Arctic Circle, and 90-degree north, that is the North Pole. So dear student, if you have a look on the location of India, India lie in the northern hemisphere, and the latitudinal extent start from 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. If we have a look according to this point of view, our Tropic of Cancer passes almost half of the India. So 8 degree 4 minute north to 23 and a half degree north. This area constitutes the torrid zone of the earth. So this area experiences the high climate or hot climate. The area beyond the Tropic of Cancer to 37 and 6 degree north, it experiences the temperate type of climate. That's why it is says that India has the tropical as well as subtropical type of the climate just due to the latitudinal extent of India. In this way, the latitude affect the climate of India. India has the tropical as well as subtropical type of climate. Second is our Himalayan mountain. How Himalayan mountain affect the climate of India? Himalayan mountain आपकी इंडिया की क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट आपका करता है? Have a look here. These are the monsoon wind that are blowing. These are the cold waves that are blowing. Dear student, you know very well about the location of India. India lie in the southwest direction. So as we lie in the South Asia, so here our Himalayan mountain lies. As the Himalayan mountain lies, they are do act as a barrier. How they are the barriers? They are barriers in the path of the winds. In our India, it is said that India has the monsoon type of climate because
monsoon is a seasonal wind that affect the climate of India in a comprehensive way. So the southeast monsoon that entered in India from the Bay of Bengal, this strike the Himalayan mountain here, and they are just trapped here. And due to this, this area, our Cherrapunji area, Mosinam area, it received the highest rainfall in the world. And when these monsoon wind deflect toward the northern plain of India due to the Coriolis force of the earth, what happened? This our northern plain of India, it also received the rainfall from the mountain. Why? Because the Himalayan mountain, it act as a barrier and it not passes, it does, the monsoon wind do not cross the Himalayan mountain. Second is the cold waves. Our Central Asia, it has the extreme cold climatic condition because cold waves blow there. So Siberian cold waves blow there. From the Siberia, our cold waves come. So our here Himalaya is lie. So here Great Himalaya is lie. They do act as a barrier. So due to the Himalayan mountain, these cold waves do not get enter in the India. Suppose if there is not Himalayan mountain, we feel the extreme cold climatic condition due to these Siberian cold winds or cold wave. But Himalaya does not did not do not get entered these Siberian cold waves in India. That's why we have the mediocre types of the climate here. So here Himalaya is affecting the climate of India. Next is our distribution of land and water. Have a look here. Our India, it is bounded with the water bodies from the three sides. This is this is our coastline, that is the 7516.6 kilometer long. So this is here we are bounded with the water bodies and here we are bounded with the land masses. Have a look once again here. दोबारा से आपने देखना है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपका क्या है, मैंने आपको बताया था इफ टेम्परेचर इज हाई प्रेशर इज लो. समर में यहाँ पे क्या होता है, आपका टेम्परेचर आपका हाई होता है. अगर टेम्परेचर समर में आपका हाई होगा तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो होगा. अब समर में आपका टेम्परेचर हाई होने की वजह से लैंड मास के ऊपर आपका प्रेशर लो है. एक फैक्ट का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर लैंड मासिस के ऊपर आपका लो प्रेशर है तो वाटर बॉडीज के ऊपर रिवर्स होगा, यानी कि हाई प्रेशर होगा. और अगर लैंड मास के ऊपर आपका हाई प्रेशर है तो वाटर बॉडीज पे आपका लो प्रेशर होगा. अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, समर में यहाँ पे क्या होता है, आपका लैंड मासिस के ऊपर हाई टेम्परेचर होता है. हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर आपका लो हो जाता है. तो लैंड के ऊपर आपका लो प्रेशर क्रिएट हुआ. तो लैंड के ऊपर अगर लो प्रेशर है तो यहाँ पे वाटर बॉडीज पे आपका कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा. और विंड हमेशा कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. यही रीजन है कि मॉनसून जो आपका इंडिया में आता है ड्यूरिंग दी समर सीजन, क्योंकि समर सीजन में इन वाटर बॉडीज के ऊपर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के ऊपर जो है आपका जो है हाई प्रेशर होता है और विंड हमेशा जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है. इस टाइम यहाँ पे जो आपका समर में जो है आपका सी टू लैंड ब्रीज आपकी चलती है, जो इंडिया में आपकी मॉनसून विंड के नाम से जानी जाती है. दूसरा, अगर हम विंटर में देखें, विंटर में आपका इस समय जो है टेम्परेचर आपका लो होता है. अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर कैसा होगा, हाई. हमेशा आपका जहाँ पे जो है आपका हाई प्रेशर है. तो इस समय क्या है, आपकी जो विंड है वाटर बॉडीज के ऊपर क्या होगा, अगर लैंड के ऊपर हाई प्रेशर विंटर में है तो वाटर बॉडीज के ऊपर आपका लो प्रेशर होगा. विंड हमेशा कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो. तो सर्दियों में इंडिया में क्या होता है, आपका विंड जो है लैंड टू सी चलती है आपकी. और आपने देखा होगा कि इंडिया में जो आपका जो ये पार्ट है यहाँ पे आपकी रेनफॉल नहीं होती है. हम इस फिनोमिना को भी आगे हम जो है इलेबरेट पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. तो यहाँ पे आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है वो आपकी प्रेशर कंडीशंस को जो है अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका जो है रेनफॉल या क्लाइमेट आपकी डायरेक्टली अफेक्ट होती है. नेक्स्ट इज अवर distance from the sea. As I told you, distance from the sea,
जो आपका एरिया वाटर बॉडीज के संपर्क में होगा, दे हैव द मॉडरेट टाइप ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन. व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द सी, we feel the extreme type of the climate. So coastal area have equable climatic, whereas interior part have extreme climatic condition. यानी कि यहाँ पे ज्यादा hot होगी या ज्यादा cold होगी, और जैसे जैसे आप समुद्र से ऊपर की ओर जाएंगे, extreme type of climate you will experience. और यही रीजन है कि जो आपकी मुंबई है, बेंगलोर है, आपका चेन्नई है, कोलकाता है, they have the moderate type of climate, neither too hot nor too cold. जबकि दिल्ली में यू फील द एक्सट्रीम टाइप ऑफ द क्लाइमेट, राजस्थान यू फील द एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड इन माउंटेनियस एरिया यू फील द एक्सट्रीम टाइप ऑफ द क्लाइमेट. व्हाई? बिकॉज दीज आर द प्लेसेस that have a great distance from the sea. Next is our altitude. As I told you, altitude, height from the sea level. मैंने आपको बताया था कि एज यू मूव फ्रॉम दी हाई एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड आपका इंक्रीज होगा, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता जाता है. तो एल्टीट्यूड का हम सी लेवल जो है हम 0 मान के चलते हैं. तो सी लेवल से आप जितना ऊपर जाओगे, जितनी हाइट पे आप जाओगे, टेम्परेचर आपका टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता जाएगा. और यही रीजन है कि यहाँ पे आपका मीडियोकर टेम्परेचर होता है. जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता जाता है, और हिमालयन माउंटेन रीजन में ये आपका -45 डिग्री सेल्सियस तक भी आपका पहुंच जाता है. कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? एल्टीट्यूड. यानी कि हिमालयन माउंटेन में जब आप जाएंगे, बॉटम से लेकर टॉप तक, यू विल फील द वेरिएशन इन द टेम्परेचर, वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस. Next is our relief. Relief also impact on the climate of any place. अगर आप relief के point of view से देखें, these are our western घाट. इन western घाट के थ्रू जो हमारी मॉनसून विंड जो है इंडिया में एंटर होती है फ्रॉम दी अरेबियन सी. इंडिया में 2 जगह पे आपकी जो है मॉनसून विंड एंटर होती है, वन फ्रॉम दी अरेबियन सी, वन फ्रॉम दी बे ऑफ बंगाल. तो अरेबियन सी के द्वारा जो है आपकी जो है मॉनसून विंड इंडिया में एंटर हो रही है. तो दिस एरिया रिसीव दी हाई रेनफॉल बिकॉज दिस इज दी विंडवर्ड साइड. जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं, द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल डिक्रीज, एंड व्हेन वी कम फ्रॉम दिस साइड, दिस इज द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, दिस एरिया हार्डली रिसीव द रेनफॉल. वो रेनफॉल को गेन नहीं करता है. तो कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? रिलीफ. ऐसे ही अगर यहाँ पे आप देखें, मॉनसून विंड गेट एंटर फ्रॉम हियर एंड दीज आर ट्रैप्ड हियर. So Mosinaram Cherrapunji received the highest rainfall in the world here because these monsoon wind trapped here. अगर आप यहाँ राजस्थान के एरिया में देखें, here Aravalli mountains has been found, they are just parallel to the path of the monsoon wind, so they do not act as a barrier in the path of the monsoon. तो यहाँ पे आपका जो एरिया है वो ड्राई रह जाता है, एंड these Aravalli monsoon hardly receive the rainfall. लेकिन जब यही मानसून यहाँ राजस्थान से होती हुई आपकी जो है यहाँ हिमालयन माउंटेन में स्ट्राइक करती हैं, तो दिस एरिया रिसीव दी रेनफॉल. तो अगर आप यहाँ सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? आपका रिलीफ और टोपोग्राफी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज अवर सरफेस विंड. सरफेस विंड में 3 सिस्टम आपके आते हैं, सरफेस विंड एंड विंड सिस्टम. इसमें आपका सरफेस विंड कि इंडिया में आपकी कौन सी सरफेस विंड है, कौन सी विंड आपकी ब्लो करती है. दूसरा अपर एयर सर्कुलेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज द जेट स्ट्रीम. एंड थर्ड इज अवर वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस. सारी की सारी आपकी इस सरफेस विंड से रिलेटेड हैं. तो पहले हम कर रहे हैं सरफेस विंड. सरफेस विंड कैसे आपकी अफेक्ट करती है? डियर स्टूडेंट, हैव ए लुक हियर. दीज आर आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट. मैंने कल ही आपको बताया था, दिस इज आवर इक्वेटोरियल low pressure belt, this is our subtropical high pressure belt, this is our subtropical low pressure belt, and this is our polar high pressure belt. अब अगर आप इंडिया की लोकेशन को देखें, इंडिया लाई बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. अगर हम ज्यादातर पार्ट को देखें, सो दैट लाई इन द ट्रॉपिकल एरिया. वो ट्रॉपिकल एरिया में आपका है. तो इंडिया की जो पोजिशन है, दिस इज दिस, यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है और यहाँ तक आपकी है. तो यहाँ पे आपका क्या है, ये एरिया जो है इक्वेटर का जो एरिया है, दिस एक्सपीरियंस दी लो प्रेशर, एंड दिस एक्सपीरियंस दिस 30 डिग्री एक्सपीरियंस दी हाई प्रेशर. तो विंड यहाँ पे कौन सी ब्लो करती है? ट्रेड विंड. कौन सी विंड ब्लो करती है यहाँ पे? ट्रेड विंड. क्योंकि प्रेशर की वजह से आपकी 3 परमानेंट विंड होती हैं, ट्रेड विंड,
ईस्टर्लाइज विंड और वेस्टर्लाइज विंड। तो ये विंड यहाँ पे ब्लो करती हैं। तो इंडिया में अगर आप थ्रू आउट द ईयर देखें तो कौन सी विंड ब्लो कर रही है आपकी, ट्रेड विंड। और ट्रेड विंड में भी कौन सी, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड, यानी कि यहाँ से विंड आपकी ब्लो करती है। ये इंडियन सरफेस के ऊपर, इंडियन टोपोग्राफी के ऊपर आपकी ब्लो करती हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एशिया से आपकी ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पे आपकी लैंड मासीज है। अब अगर यहाँ पे लैंड मासीज हैं तो क्या होगा कि ये यहाँ की जो विंड्स होंगी इनमें मॉइस्चर बहुत कम होगा या नहीं होगा, बिकॉज दे आर ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी, क्योंकि ये लैंड टू सी चल रही है। जो विंड आपकी सी टू लैंड चलेंगी उनमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, क्योंकि वो ओशन वाटर से मॉइस्चर को अज्यूम कर लेती हैं। लेकिन जो लैंड टू सी चल रही है, लैंड पे आपका मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता है, तो उनमें, उन विंड में आपका मॉइस्चर बहुत कम होता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपकी जो है ट्रेड विंड आपकी चल रही है। और ट्रेड विंड चलने की वजह से आपका क्या होता है कि आपकी जो है यहाँ पे जो है लैंड टू सी आपकी जो है विंड चल रही होती हैं। अब ये लैंड टू सी विंड आपकी चल रही हैं तो इंडिया जो है, इंडिया के ऊपर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एंड इंडिया शुड बी ए डेजर्टिक कंट्री। पूरा जो इंडिया है वो एक डेजर्ट में होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर ट्रेड विंड के अकॉर्डिंग नहीं है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडिया जो है, इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड, बट इन एक्चुअल इट इज नॉट। एक्चुअली ये नहीं है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एरिड लैंड होना चाहिए था, आपका डेजर्टिक एरिया होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरा फैक्टर भी काम करता है। सरफेस विंड तो आपकी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिड रीजन होना चाहिए। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, सरफेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका यहाँ पे जो है, आपका जो है लो प्रेशर है, और लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, और यहाँ पे आपकी जो है वाटर बॉडीज है। यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है, यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे आपकी बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है। तो यहाँ पे कोई भी लैंड मास नहीं है, लैंड मास नहीं है, तो कोई भी हिंड्रेंस जो है विंड के पाथ में नहीं है। तो यहाँ पे आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड चलती है, यानी कि ये ट्रेड विंड आपकी चल रही है। ये ट्रेड विंड जब आपकी यहाँ पे आती है तो ड्यू टू दी आपका क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स होती है आपकी अर्थ की। कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो आपकी जो विंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो राइट डायरेक्शन में चलती है, यानी कि राइट हैंड साइड चलती है, और साउथ में आपकी जो है लेफ्ट हैंड साइड आपकी चलती है। यहाँ पे आपने देखा ये राइट हैंड साइड आपकी चल रही है, और यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी चलती है। तो इस प्रकार से ये विंड आपकी चलती है। तो ये विंड आपकी जो है यहाँ पे आपकी इंडियन लैंड मास के ऊपर स्ट्राइक होती है। टू पार्ट्स में आपकी डिवाइड हो जाती है, वन इन बे ऑफ बंगाल एंड सेकंड इज द अरेबियन सी। कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। एक आपकी जो है अरेबियन सी से ये ऐसे वेस्टर्न घाट की तरफ होंगी, और इधर से आपकी कोरियोलिस फोर्स की वजह से आपका नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया में आपकी चली जाती है। तो ये साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है, जिसको आप साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट मॉनसून के नाम से भी जानते हैं, इंडिया में इन ट्रेड विंड को मॉनसून विंड के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे सर कि ये जो विंड है ये इंडिया में आती तो हैं, कैसे आएंगी? तो ये आपकी जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा विंड आपकी चलती है। समर में यहाँ पे क्या होता है, आपका लैंड मासीज के ऊपर आपका टेम्परेचर हाई होने की वजह से लो प्रेशर हो जाता है। लो प्रेशर हो जाता है तो वाटर बॉडीज के ऊपर ऑपोजिट आपका होता है, तो हाई प्रेशर होता है। तो इसलिए जो विंड है ये आपकी इंडियन लैंड मास के ऊपर चलती हैं, और इंडियन लैंड मास के ऊपर आपकी चलती हैं। तो ये आपका जो है ओशन से जो आपका जो है अलग अलग जो मॉइस्चर को जो गेन करती हैं, और अलग अलग मॉइस्चर को गेन करने की वजह से ये आपका जो इस मॉइस्चर को जो है इंडिया लैंड मासीज के ऊपर स्प्रेड करती है थ्रू दी रेनफॉल के थ्रू। अब आपका यहाँ पे एक चीज और आपकी आती है कि ये जो आपकी जो विंड आपकी चल रही है, यहाँ पे आपका दूसरा काम करता है अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है? द अपर एयर सर्कुलेशन आपका इस रीजन में भी एक्टिवेट होता है और इस रीजन में भी एक्टिवेट होता है। ये आपका जो रीजन होता है, ये अपर एयर सर्कुलेशन इज ऑल्सो नोन एज दी जेट स्ट्रीम। अपर एयर सर्कुलेशन को हम जेट स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं। जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है या जेट स्ट्रीम जो होती है आपकी, आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली ओवर 27 डिग्री टू 30 डिग्री, यानी कि ये आपका 27 डिग्री टू 30 डिग्री के आसपास लोकेटेड होता है, और आपका विंटर में। और
आपका जो है समर में आपका 14 डिग्री नॉर्थ के आसपास आपका जो है ये लोकेटेड होता है। जेट स्ट्रीम क्या होती है? दे आर दी नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ये जेट स्ट्रीम आपकी जो है एक प्रकार की विंड होती है, बहुत तेज। हमारे जो जेट एयरवेज चलते हैं उनकी स्पीड से आपकी चलती है, तो इसलिए हम इनको जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। अप्रोक्सीमेटली 12,000 मीटर, ये 12,000 मीटर के ऊपर आपकी एक्टिवेटेड होती हैं। इन वेस्टर्ली विंड्स दो तरह की आपकी जेट स्ट्रीम होती है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम होती है वो समर सीजन में इंडिया की लैंडमास के ऊपर एक्टिवेटेड होती है 14 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, और उनकी जो स्पीड होती है आपकी दैट इज 110 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आपकी वाटर बॉडीज है, यहाँ 8 डिग्री है, यहाँ पे आपका 14 डिग्री के आसपास का रीजन मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी जो है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से चलती हैं। तो ये इन ट्रेड विंड को जो है किसकी ओर पुश करती हैं? आपका इंडियन लैंड मास की ओर पुश कर देती हैं। तो इंडियन लैंड मास की ओर पुश करती हैं, तो ये सारी विंड जो आपकी यहाँ पे कंसंट्रेट होती है, जिसकी वजह से आपकी मॉनसून विंड जो है वो इंडिया में आती है। दूसरी आपकी होती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम होती है वो 27 डिग्री 30 डिग्री यहाँ पे आपकी एक्टिवेट होती है ड्यूरिंग दी विंटर, केवल 4 महीनों के लिए। समर में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम 8 महीनों के लिए एक्टिवेट होती है, जबकि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है विंटर में इस समय नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपकी जो है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एक्टिवेट होती हैं, जो 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी चलती हैं। और यहाँ से ये आपकी जो है इंडिया में यहाँ पे जितनी भी आपकी एयर है उसको जो है इंडिया की ओर पुश करती हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया में आपका जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में कुछ अमाउंट में आपकी रेनफॉल होती है, और हिमालयन माउंटेन में आपका जो है स्नोफॉल होती है। वो किसकी वजह से होती है? वो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से होती है, जिसको आपका वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं कि आपका जो ये समय जो है इस समय राइट नवंबर का टाइम जो होता है, नवंबर दिसंबर का जो आपका टाइम होता है, जन फेब का जो टाइम होता है, यहाँ पे आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में आपका मेडिटेरेनियन सी है। इस मेडिटेरेनियन सी पे आपके जो है लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये आपका जो लो प्रेशर क्रिएट होता है, सी के अंदर लो प्रेशर में आपके साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं, जो बहुत ज्यादा आपका जो है रेनफॉल को क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा कि ईस्टर्न जो कोस्टल एरिया है वहां पे भी आपके जो है विंटर सीजन में आपके साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं, जो आपके कोस्टल एरिया को, जैसे कि वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, आपका तमिलनाडु रीजन, आपका ओडिशा रीजन, वहां पे डिवास्टेशन को क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही मेडिटेरेनियन सी में आपका क्या होता है, आपका जो है साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं, और इस समय यहाँ पे कौन सी जेट स्ट्रीम एक्टिवेट होती है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एक्टिवेट होती है। तो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होती है? इन साइक्लोन को जो है आपके यहाँ पे इंडियन लैंडमास की ओर पुश करती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी माउंटेन आपका रास्ते में नहीं आता, तो यहाँ पे आपका हिमालयन माउंटेन से स्ट्राइक होते हैं। हिमालयन माउंटेन से जब ये आपके यहाँ पे स्ट्राइक होते हैं, तो इट डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, टू स्ट्रीम्स में आपके डिवाइड हो जाते हैं। एक स्ट्रीम आपकी चली जाती है हिमालयन माउंटेन में, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी स्नोफॉल होती है, और एक स्ट्रीम आपकी चली जाती है नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में, जिसकी वजह से आपकी नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में आपकी रेनफॉल होती है। तो इस प्रकार से मेडिटेरियन सी में जो साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं, जिनको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडियन लैंडमास की ओर पुश करती है, तो ये इंडियन लैंडमास की तरफ जो पुश करती है, तो इससे हिमालयन माउंटेन में स्नोफॉल और नॉर्दर्न प्लेन में आपकी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से ये आपकी रबी क्रॉप, जो वीट की क्रॉप है, उनके लिए एक ब्लेस का काम करती है। तो इस प्रकार से जो सरफेस विंड, आपका वेस्ट जेट स्ट्रीम, जिसमें दो कैटेगरी है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और आपका वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस, दे दे इन्फ्लुएंस और दे हैव द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे जो है ग्रेट इन्फ्लुएंस आपका करती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर द सर्टेन फैक्टर
that affect the climate of India. So dear student, this is enough for today. If you have any question, any doubt, you can ask me now. Thank you, beta. Have a nice day. God bless you all.